I will continue with the previous chapter, Atoms and Molecules, Part 3. So, in this chapter, we have learned about the atoms earlier, ki how the things are made, atomic theory we have learned, law of constant proportion we have learned. Now we will start how the atoms are. Now, what is atom? We can define it as the smallest part into which element can be divided, or we can say which is fundamental unit of matter. वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसके से फर्दर किसी भी एलिमेंट को नहीं डिवाइड किया जा सकता, एंड विच इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, जो मैटर की फंडामेंटल यूनिट है. दे आर स्मॉलर देन एनी थिंग विच वी इमेजिन और कंपेयर विथ. ये इतने छोटे होते हैं कि जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. सिम्बल्स आर यूज फॉर डिनोटिंग द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं एटम्स को डिनोट करने के लिए. डाल्टन वॉज फर्स्ट टू यूज़ द सिम्बल्स. डाल्टन सबसे पहला था जिसने कि सिम्बल्स यूज़ किए थे. Their unit in which they are measured is nanometer. It is a very small unit in which we are measuring the size of atoms. Nowadays, with the advancement of the technology, we may be able to see them, the atoms, and are constantly affecting whatever we do. Through modern techniques, we can now produce magnified images. अब हम उसकी बड़ी बड़ी images भी magnify कर सकते हैं, showing the atoms. Now modern day symbols are different, and the symbols which were given earlier were different. Like Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in very specific sense. He has denoted hydrogen as shown in this picture. Carbon, oxygen, simple circles were there, and in the hydrogen, within the circle, a small circle dot is there. Oxygen is a simple circle, carbon is a shaded circle. This way the pictures are shown. They were the earlier known symbols, but nowadays this is changed. In the beginning of the names of elements were derived from the name of the place. जहाँ पर वो होते थे उस जगह से उसको derive किया था. Like साइप्रस एक place है जहाँ से सबसे पहले कॉपर को निकाला, तो उसका नाम रख दिया गया कॉपर, साइप्रस के नाम पर. Some names were taken from specific color. कुछ specific colors पे लिए गए नाम. Like gold was taken from the English word meaning yellow. गोल्ड का मतलब होता है येलो. Nowadays, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, approves names of elements. अब आजकल जो है IUPAC मतलब International Union of Pure and Applied Chemistry, approves names of elements. उसने जो है elements के names approve किए. Many of the symbols are the first one or two letters of the elements. तो अब क्या होता है कि बहुत सारे सिम्बल्स ऐसे हैं कि या तो केवल एक ही लेटर नाम का, या फिर एक के साथ छोटा लेटर. देन इसको कैसे सिम्बलाइज करते हैं कि व्हेन टू अल्फ़ाबेट्स आर देयर, तो एक कैपिटल दूसरा स्मॉल. अब एग्जांपल्स देख लीजिए. हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल H, वाइल एल्यूमिनियम इज डिनोटेड बाय कैपिटल A एंड स्मॉल l. कोबाल्ट इज डिनोटेड बाय कैपिटल को C और स्मॉल हो. ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं. लाइक कार्बन एंड कोबाल्ट बोथ आर स्टार्टिंग विथ C. तो अब कैसे उसको नाम दिया जाए? लाइक क्लोरीन ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग विथ C. तो ऐसे में क्लोरीन को Cl कर दिया, कोबाल्ट को CO कर दिया, एंड कार्बन इज C. So this is how we have denoted these. Now some elements are named as per their Latin names. Like ferrum एक लेटिन नेम था, उससे हमने Fe दिया. कैलियम वॉज द लेटिन नेम ऑफ पोटेशियम, तो हमने K कर दिया उसका सिंबल. सो नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न ऑल these symbols for some elements which are given in the list, and you may have learned in your previous classes also, but it is necessary because without these symbols, study of chemistry is impossible. So this was about the symbols of the elements. Now one more aspect is there, that is known as atomic mass. The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that the atomic mass, सबसे important चीज़ डाल्टन की थ्योरी में जो प्रपोज की गई थी वो एटॉमिक मास था. मास का मतलब एटम का कितना वेट है.
अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास. उसने कहा कि हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होता है. द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम. ये थ्योरी ने जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से को इस तरह से सेटिस्फाई किया कि लोग उसका जल्दी से एटॉमिक मास हर एटम का लेना शुरू कर दिए साइंटिस्ट. सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क. अब ऐसे निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, इतना छोटा पार्टिकल उसका मास निकालना. तो क्या किया कि यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म. Let us take the example of compound carbon monoxide formed by carbon and oxygen. It was observed that experimentally the 3 ग्राम of carbon, मतलब एक्सपेरिमेंट से 3 ग्राम कार्बन कंबाइन करके 4 ग्राम ऑक्सीजन से CO बनाता है. तो इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. तो कार्बन 4/3 मास जो है ऑक्सीजन के उससे कंबाइन कर रहा है. तो सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. It is abbreviated by AMU, but nowadays it is abbreviated by U. So इस तरह से एक यूनिट बना ली गई, उससे रिलेटिवली मेज़र किया गया एटॉमिक मास. और ये जो लिस्ट दी है जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके की एटॉमिक मास निकाल लिए गए. जैसे लाइक हाइड्रोजन हैज़ 1, कार्बन हैज़ 12. सो दिस वॉज अबाउट द एटॉमिक मास. नाउ ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट. ज़्यादातर एलिमेंट से रिएक्ट करती है. द एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स. और ज़्यादातर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो होल नंबर्स में ही दिया जाता है. नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप वॉज चोजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस. उसको जो है कार्बन 12 आइसोटोप का जो है उसको यूनिट मानकर सारे सब चीज़ों के एटॉमिक मास रिलेटिव वे करके रिलेटिव डिटरमाइन करके एटॉमिक मास निकाल लिए गए. और इस तरह से सारे चीज़ों के एटॉमिक मास आर गिवन इन दिस लिस्ट एंड यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो. अब नाउ हाउ डू एटम एग्जिस्ट. एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ज़्यादातर मेटल्स के जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते कि एक अकेला H, एक अकेला O, एक अकेला कोई भी एटम एग्जिस्ट करे. तो वो क्या करते हैं, ऐसे एटम्स मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं. एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर. और ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस मिलकर एक साथ से मैटर बनाते हैं. और मैटर को हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. एटम एक अकेला एटम को हम लोग नहीं टच कर सकते. तो ये था कैसे जो है मैटर इवॉल्व हुआ. अब नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल. सो अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मीन्स अकेले एग्जिस्ट कर सके ऐसा एटम का ग्रुप होता है किसी भी एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का. अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल या कंपाउंड का छोटे से छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस. और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उस सब्सटेंस की शो करे. Now molecule is in general a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together. अब ये ज़्यादातर क्या होता है, ग्रुप होता है 2 और more atoms का. तो वो जो है केमिकली बॉन्डेड होते हैं. दैट इज़ टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. और वो इतनी टाइटली हेल्ड होते हैं बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस कि दे कैन नॉट सेपरेट. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of independent existence and shows all the properties. So this is the definition which I am repeating again. Atoms of the same element or of different element can join together to form molecules. अब जो atoms होते हैं किसी एक element के एक साथ जुड़कर एक उसका मॉलिक्यूल बना देते हैं. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 2 ऑक्सीजन के एटम हमेशा O2 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम से बनता है. इसी तरह से हम नाइट्रोजन देखते हैं तो उसके भी 2 एटम टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ N2.
क्लोरीन देखते हैं तो उसमें भी इसी तरह से है कि दो एटम क्लोरीन के जुड़कर एक मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूल का एटम, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली कैन एग्जिस्ट एंड एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम में क्या डिफरेंस हुआ और मॉलिक्यूल में कि एटम या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो करे, तो वो होता है एटम। तो दिस वॉज अबाउट द portion which we have learned today from the chapter 3 part 2